Good morning, students. I hope you all are doing well. We were in the lesson number 2, the verb. We started this lesson and I gave you the information about what a verb is, and we also talked about the different types of verb. The verb is divided into two main parts, and that is the main verb, which is also called the lexical verb, and the second one is the helping verb, which is also called the auxiliaries. Okay. Before telling you that, I also mentioned about the different the two branches of auxiliaries, that is the primary and the models. Primary are further divided into three types, and that is the to be, to do, to have, right? So we talked about that. Okay. Now see, I will just give you just see the picture that is given below, given in the book, page number 187. See, the auxiliaries are divided into two. Auxiliaries have two branches. First is primary, second is models. Models के examples हैं shall, will, should, because they show some kind of expression. Okay, mood. They tell you about mood. And we have primary. Primary is further divided into three parts. That is the to be. When we are talking about to be, then we are having am, are, is for present tense, was, were for past tense, right? Is for singular, was is for singular, but and am is for singular, whereas are and were is for plural. So make sure you understand what is plural, what is present, what is past. Similarly, to do, we have three words, that is does, do, which is present tense, and did is past tense. Okay, does goes for singular, do goes for plural, and did में आप singular हो या plural, both cases में did use करोगे. To have में आप देखोगे has, have, had. हैज़ हैव आपके प्रेजेंट टेंस फॉर्म है और हैड आपके पास्ट टेंस है. हैज़ इज़ यूज फॉर सिंगुलर, हैव इज़ यूज फॉर प्लूरल. ओके, बट इन हैड्स केस, बट इन पास्ट फॉर्म आप यू देखोगे कि है सिंगुलर के लिए भी हैड होगा, प्लूरल के लिए भी हैड होगा. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्राइमरी, दिस इज टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट टेंस. ओके, व्हेन द सेंटेंस इज इन अ परफेक्ट फॉर्म, जैसे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन सब केसेस में हमें हैज़ अ फॉर्म यूज़ करना होगा, और उस केस में V3 फॉर्म आना ज़रूरी है. जैसे शी हैज़ डन हर वर्क, दे हैव गॉन टू ऑफिस, तो आपका जो डन, गॉन, शी हैज़ रीच्ड द स्टेशन, तो रीच्ड. ओके, तो इन सब केसेस में आपको समझना होगा. द बेल हैज़ रंग, ओके, तो रंग होगा, डोंट से द बेल हैज़ रिंग, द बेल हैज़ रैंग, ये सब नहीं बोलना है, आपको कहना है द बेल हैज़ रंग. Okay, so we went through that. Why am I stressing more on this? Because this is the most important part of grammar, which we are doing it right now. And if you understand this verb properly, then things will be easier for you to go ahead. It will make you sure that what exactly verb is, because verb is related to every lesson which we are going through. When we are doing active passive, then also verb is needed. When we are doing direct or indirect speech, then also verb is needed. Okay, when we are talking about personal pronoun, then also the verb is needed. So that is what I am trying to say. When we are doing tenses, then also tense is a major form of verb. Okay, तो इस केस में आपको ये देखना है. Now main verb जो हमारा जैसे हम लोग लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स. फिनिट फॉर्म्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जैसे आई रीड, ही रीड, दे रीड, शी गोज़, आई गोज़, दे गो, राइट. लेकिन नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं? दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर. देन जैसे आप ये देखोगे, उनके जो है नॉन फिनिट वर्ब्स जो होते हैं, उनके तीन पार्ट्स हैं, जैसे इन्फिनेटिव, जेरोन्स, पार्टिसिपल. ओके, ना इन्फिनेटिव्स में देखिएगा आप टू फॉर्म आपका यूज़ होंगे, जैसे शी हैज़ टू गो टू स्कूल. ओके, ना यहाँ पे टू प्रेपोजिशन की तरह नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है. जेरोन्स होते हैं जब आप एक वर्ब को आईएनजी फॉर्म मिला के जब आप एक मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म मिला के आप उसको नाउन में ट्रांसफ़र कर देते हो, तो वो वर्ड अब नाउन बन जाएगा. ओके, जैसे स्लीपिंग इज़ माई हॉबी, उसके बाद राइटिंग इज़ माई स्किल. अच्छा, तो इन सब केसेस में आप क्या देखो, राइट में आईएनजी लग गया, लेकिन राइट तो मेन वर्ब है ना, राइट, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा तो क्या हो गया, वो नाउन फॉर्म ले लिया. ओके, तो इस केस में हम इसे जेरोन कहते हैं. नाउ पार्टिसिपल फॉर्म में क्या आपको यूज़ करना है? जैसे पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है ईडी फॉर्म, ईएन फॉर्म, तो ये आपके पार्टिसिपल फॉर्म है. उसके एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट. इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस बुक, दिस विल बी डेफिनेटली हेल्प यू. अगर आपके पास
नहीं है वो बुक और आपके पास कोई और क्लास 10-9 की बुक है, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दैट, बट इससे आपके लिए ईजियर हो जाता है जब आप क्लास के बुक को फॉलो करो और आपके टीचर्स जो आपको कह रहे हैं आप उसको फॉलो करो, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल, राइट। नाउ non-finite verbs, three major part I told you. The first one is the verbal noun, जो एक्ट करते हैं एज अ वर्बल नाउन जिसमें इन्फिनेटिव और जेरुंड आता है। सेकंड है एक्ट करते हैं एज अ वर्बल एडजेक्टिव जिसमें पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल हमेशा एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर होगा। यहाँ पे उसका जो यूसेज है वो उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, ऑल्दो वो वर्ब फॉर्म है, मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगेंगे, बट उसका सिग्निफिकेंस जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे फ्लावरिंग प्लांट इज़ प्योर, जैसे फ्लोइंग वाटर इज़ प्योर, फ्लावरिंग प्लांट इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, तो ही गेव मी अ ब्रोकन पेन। तो इस सब केसेस में आप क्या देख रहे हो, ब्रोक, फ्लो, ये सब वर्ब है, लेकिन इसमें जब आईएनजी फॉर्म लगा या फिर ईडी फॉर्म या ईएन फॉर्म लगा तो वो एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, नॉट एज ए नाउन जैसे जेरुन में होता है। ओके, ना वापस से हम लोग आते हैं फिनिट वर्ब्स में। फिनिट वर्ब्स आपको याद होगा, फिनिट वर्ब्स थे जिसको हम लोग मेन वर्ब्स भी कहते हैं। ओके, सॉरी, मेन वर्ब्स के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, वी टॉक अबाउट फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। तो फिनिट वर्ब्स के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। नॉन फिनिट के तो 3 टाइप्स हैं। नॉन फिनिट के तो 3 टाइप्स आई टोल्ड यू, इन्फिनेटिव, जेरुंड एंड पार्टिसिपल। ओके, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आते हैं, पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। लेकिन जब हम लोग फिनिट वर्ब्स के बारे में बात करेंगे तो वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ट्रांजिटिव, एक है इनट्रांजिटिव। अगर आपको याद होगा, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट दो सेंटेंस जिसमें आपका जो नाउन है वो आपका सब्जेक्ट होगा और वो वर्ब जो है वहाँ पे यूज़ होगा वो उस नाउन को नाउन के बारे में बताएगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई, द हाउस रन्स, द हॉर्स रन्स फास्ट। ओके, तो इन सब केसेस में आप देखोगे सब्जेक्ट, वो जो वर्ब है वो यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के लिए, राइट। द फायर बर्न्स, कौन किया, फायर। हिज मदर कैन नॉट रीड, वुड फ्लोट ऑन वाटर। इन सब केसेस में okay children, so we'll move to the next page, next topic of this lesson, and that is come to page number 189. See, the first point, some transitive verbs require 2 objects. Okay, they are called direct or indirect objects. See, she taught us English. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका she से सब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, us भी है, इंग्लिश भी है। ओके, तो मेन वर्ब आपका taught यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होकर शिफ्ट हो रहा है कहाँ, आपके ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट us है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। सिमिलरली आई गेव हिम योर मैसेज, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, योर गेव वर्ब, जो गेव है आई सब्जेक्ट है, गेव इज़ वर्ब। ओके, ये जो वर्ब है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स यूज्ड है, एक है हिम, एक है मैसेज। तो मैसेज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके हिम है। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दिस इज एन ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे आपका मेन वर्ब सब्जेक्ट से शिफ्ट होता है आपके ऑब्जेक्ट पे। ओके, okay, now see, the indirect object generally precedes the direct object. The other examples are, कुछ intransitive verbs ऐसे होते हैं जो नाउन भले वर्ब होते हैं बट वो यूज़ होते हैं एज अ नाउन। जैसे she sangs, और इस केस में क्या होगा, नाउन और वर्ब का सिमिलर मीनिंग सेम होगा। जैसे she sang a melodious song, तो melodious मतलब बहुत ब्यूटीफुल, जिसको सुन के बहुत अच्छा लगे, बहुत रिफ्रेशिंग हो। तो यहाँ पे sang और song दोनों का मतलब गाना हुआ, लेकिन यहाँ पे sang है एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, song एज ए नाउन यूज़ हुआ है। लेट अस रन अ रेस, रन एंड रेस दोनों का मतलब एक है, रन एंड रेस, लेकिन रन आपका वर्ब है एंड रेस आपका नाउन है। वी सॉ अ वंडरफुल साइट, सॉ आपका वर्ब है, साइट आपका नाउन है। स्लेप्ट, स्लीप्ट आपका वर्ब है, स्लीप आपका नाउन है। फॉट, फाइट, फॉट आपका वर्ब है, फाइट आपका नाउन है। ओके, ना कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इस केस में आप क्या देखोगे कि सम वर्ब्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स एंड आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए एग्जाम्पल्स देखिए, मैन इज़ मॉर्टल, यू अपीयर सैड, ही लुक्स हैप्पी। तो यहाँ पर सैड, हैप्पी, ये सब क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है।
ओके, इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं ये, तो लुक्स यहाँ पे ही लुक्स वॉट, तो यहाँ पे आप लुक्स जो है वर्ब है वो इनकम्प्लीट सेंस बना रहे हैं, लेकिन जब हैप्पी पुट कीजिएगा तो वहाँ पे कंप्लीट सेंस होगा। सिमिलरली दे मेड हिम अ किंग, तो यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है, मेड आपका वर्ब है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। ओके, तो प्लीज़ सी द एग्जाम्पल्स, these examples are very important for us to understand, because if we try to solve these examples then it will be easier, it will be much easier for us to solve the exercises also. ना यहाँ पे और भी examples है, but I want you to turn to page number 190. Now come to the last point, the last 10th point. The noun comes in the form of object, जिसे हम लोग cognate verb object कहते हैं ना। Some intransitive verbs जैसे render into a transitive verbs by adding some preposition. जैसे the police looked into the matter, don't laugh at the poor beggar, तो यहाँ पे क्या है, the police looked into the matter. ओके, तो यहाँ पे आपका intransitive verbs are rendered to आपका shift हो गया है, यूजिंग किससे, इन preposition यूज़ करेंगे, into, at, don't laugh at the poor beggar, तो यहाँ पे don't laugh ना, ये कौन हंस रहा है, पुअर बेगर पे हंसना, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है इसे शिफ्ट होके, सॉरी सब्जेक्ट से शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट पे आ गया। सिमिलरली पुलिस आपका सब्जेक्ट था, उसे शिफ्ट होके मैटर पे आ गया। तो बेसिकली दीज वर्ब्स लुक्ड एंड लाफ आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ओके, नाउ लास्ट सी और एग्जाम्पल्स आप देखो, राइप फ्रूट्स फॉल इनटू द ग्राउंड, द हॉर्स रन्स, ही फेल्ड द ट्रीज, ही रैन द हॉर्स। Now एक और एग्जाम्पल है, सम कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव, जैसे नाउन ही इज़ अ हेल्दी बॉय, ही इज़ हेल्दी, ही इज़ अ बॉय। ओके, तो इस केस में आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ब्स आते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू ऑक्सिलरीज, ओके, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स वेरी वेल, सो दैट it is easier for us to do the exercises. Okay, thank you so much children. We'll meet in the next class. Please go through the lesson carefully.